इमेज में जाने से पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3:10। फिलिपियों 3:10। Come, before we take part in the Lord's table today, shall we read Philippians chapter 3 and verse 10? Philippians 3:10. हाँ, फिलिपियों 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings, becoming like him in his death. तो उस वचन पे आशीष दें God bless this word. और आप अपने लोगों के सामने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लाएं प्रभु, And bring it in front of your people with the power of the Holy Spirit. और अपने क्रूस की बड़ी सामर्थ्य को दिखाएं प्रभु, And reveal the great power of your cross in front of us. ये जी उठने की सामर्थ्य अपने लोगों को प्रकट करें। Lord, reveal the power of your resurrection to your people. यिर्मयाह 1:9, Jeremiah 1:9, 48:6, निर्गमन Isaiah 4 48:6, Exodus 4:12, thou fulfill. बोलते याद दें, पुकारने का शब्द दें, पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल लें, अंधकार की शक्तियों को यीशु नाम बांधते हैं। Give boldness to speak and a voice to cry out. We bind the unseen power of Satan in the name of Jesus. और प्रभु सारी महिमा आपको मिले। And Lord, you may receive all the glory. अंधकार की शक्तियों को यीशु नाम बांधते Bind Satan in Jesus' name. हैं। अब प्रभु संभाल हमें, हम पर दया Lord, कर, please sustain us. Have mercy on us. अपने लहू में छिपा ले। Hide us in your blood. दुष्ट आत्मा की शक्तियों को क्रूस की शक्ति द्वारा मार। Lord, crush the powers of the evil one by the power of the cross. हम दोनों भाइयों को एक मन करें। Make us brothers of one heart. प्रभु दया करें, Have mercy. प्रभु यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. Amen. हम 2 पद पढ़ेंगे इससे पहले जाने से पहले। Before यहूदा we की see this, we'll read 2 other verses. Judah, the Jude. यहूदा की पत्री 6 और 7 पद। Jude, verse 6 and 7. Jude, verse 6 and 7. 6 और 7 पद जी। And the angels who did not keep their position of authority but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, और उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। प्रभु कह रहा है यहाँ पर कि मैंने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा। The Lord said, I did not spare the angels, सदोम अरोमा के लोगों को नहीं छोड़ा। not spare the people of Sodom and Gomorrah. सवाल ये उठता है कि मुझ जैसे आदमी को, आप जैसे को कैसे छोड़ दिया? How did he spare people like you and me? इसलिए छोड़ दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। So this is because उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। मुझे इसलिए छोड़ा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। He spared me because he did not spare his only begotten son. मैं इसलिए और आप बचे। That is why you and I have been spared. वरना उसने किसी को नहीं छोड़ा। He did not spare anyone. अगर वो इकलौते पुत्र को छोड़ देता तो मैं बचने का सवाल ही नहीं था। Had he spared his only begotten son, I wouldn't have been spared. आज हमारा विषय है, Today our topic is the resurrection. आप कहेंगे भाई आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया करो, ये लहू क्रूस और ये जी उठने की सामर्थ, मतलब कुछ Brother, please bring some interesting topic. What about this blood and cross and resurrection? आप वही बातें बार बार विचार करते हो। You keep repeating the same things over and over again. और आप मुझे कितना ही निराश कर लो, ये बात आपके ऊपर है। You can make me so disappointed by saying this. मगर मैं उसी बात का प्रचार करूंगा। But I will continue to preach about it.
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मुझे दें, आप मुझे लाएं, आप मुझे लाएं। अब बड़ी बेचैनी होती है, आप मत सोचिए कि ऐसे ही हो जाता सब कुछ। I keep on praying, Lord, give me the message that you want me to deliver. It is difficult. I वहाँ get really anxious. फिर सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी आदमी को सोचूं कि साहब ये वो है और समझ में नहीं आएगा, ये होगा, सवाल ही नहीं उठता फिर दिमाग लगाने So when the Lord speaks, this question doesn't arise whether this will come, somebody will understand or not understand. हाँ, अब आपको समझ आए या ना आए, मगर मैं दिमाग नहीं चलाता, मैंने कहा है, मैं कह दिया। Whether you understand or not, I will not apply my brain. हाँ, निराश करने वालों की तो लाइन लगी है अब सुबह शाम तक। And there is a line of people to discourage you. देखिए, भले अट्रैक्टिव विषय ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो, मगर पॉल क्या कहता है, पढ़िए Whether फिर it may be interesting or not, what does Paul say? पढ़ो भाई। Philippians 3:10. अच्छा, यस भाई, फिलिपियन 3:10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब 3:10, ओके, क्योंकि ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। That I may know him, the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. पॉल कह रहा है इतना सब कुछ ज्ञान रखने के बाद और तीसरे आकाश तक उठ जाने के बाद कह रहा है मैं उसकी झूठने की सामर्थ को, Paul, who knew so जरूरी हो much, ना हो, पॉल बहुत जरूरी बता रहा है और फिर मेरे लिए भी जरूरी हो जाता है। if it is necessary for Paul, it is necessary for me also. हाँ, देखिए, शब्दों की भी अपनी देह होती है, जिस्म होता है, Words also have a body, उसमें घुसना पड़ता है। and you have to enter into that. हाँ, लोग कहते हैं इसका मडगार्ड बदलवा दो। People say, change this mudguard. मैंने कहा ये क्या होता है मडगार्ड? What is a mudguard? फिर मैंने सोचा ओहो, मड को रोकने वाला, गार्ड करने वाला, ये शब्द होता है। It is the guard to prevent, to protect from the mud. यानी mud जो हिंदी में होता है उसका मतलब मिट्टी से बचाने वाला mud guard. गार्ड होता है। तो मैं फिर शब्दों के अंदर तक जाने की कोशिश करता I try to enter into the word itself. तब उसकी खूबसूरती अलग होती है। Then the beauty of the word is entirely different. और बाइबल के शब्दों में अगर आप जाएंगे तो बताएगी बाइबल उसकी कितनी सामर्थ है उन शब्दों में, वो उसकी सुंदरता बताएगी और वो क्यों कहना चाहता और इस जगह पर उसने क्यों कहा। If you go into the biblical words, you will understand why a particular person is using the word and what does he want to convey. कुछ लोग यूं हिल के पढ़ लेते हो तो आप ऐसे रख के पढ़ लेते हो, फर्क कुछ नहीं है उसको, कुछ नहीं। Some people they shake and read the word. Some people lift the read the word. That doesn't make any difference. यहाँ सारे विश्वासी सूर बाइबल पढ़ेगा, पूछो आज प्रभु ने क्या बात किया। The brothers and sisters who read the Bible in the morning and come, what has the Lord spoken to you? आधे से ज्यादा को नहीं मालूम है प्रभु ने क्या बात। More than half don't know what the Lord has spoken. तो इससे होता नहीं है, कुछ नहीं होने का। That will not produce any change. हाँ, कुछ तब आता है जब आप देखिए प्रभु उनका उपयोग करता है जिनके अंदर इच्छा होती है कुछ करने The Lord uses those people who have a desire to be used by Him, उनकी जानने की कुछ इच्छा होती है। a desire to know Him. हाँ, पॉल ने ये शब्द क्यों कहे? Why did Paul use these words? देखिए, आपका उद्धार हुआ कैसे? How were you saved? आपके शरीर में तो मौत काम करती थी, Death works in your body. मौत बिट बाय बिट प्रोसेसिंग में है। Bit by bit, death is being processed in your body. एक प्रतिक्रिया, मतलब एक क्रिया चल रही है, बस आप मौत की There is जा a रहे। constant process of death working in your body. अंश भाई, वो काम कर रही है, मौत काम कर रही है। It is working. हाँ, तो वो कह रहा है कि हमारी मरी हुई देह को नया जन्म कैसे मिला। How did our dead body get a new life? पहला पतरस और 1 और 3 पढ़िए। 1 Peter 1 and 3. 1 Peter chapter 1 and verse 3. हाँ, 3 verse 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Blessed प्रभु be the ये God and yeah. पढ़ो पढ़ो बोलो भाई। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance. कैसे हुआ? How did it happen? नहीं तो मौत काम कर रही थी। Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Otherwise, death was working. उठने की सामर्थ से नया जन्म पाया। It is by the power of the resurrection we've got a new life. मैंने कहा ना पिछली बार भी कह रहा था, जिसके अंदर जी उठने की सामर्थ काम करती है उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है, जी उठने की सामर्थ आ जाती है, याद आता है, वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। अगर उसके अंदर एक पश्चाताप की आत्मा रहती है, नहीं समझ में आएगा। One in whom the power of resurrection works, he works for the Lord. There is a spirit of repentance working within him. डर से बाहर आता है। He comes out of fear. हाँ, तो देखिए चेले डरे हुए क्यों थे? Why were the disciples scared? उनके अंदर जी उठने वाली सामर्थ्य नहीं थी। Because they did not have the power of resurrection in them. हाँ, देखिए जैसे ही विश्वास आया तो जीवते परमेश्वर ने, जैसे उनके अंदर जी उठने वाला विश्वास आया, वो बाहर निकल गए। The moment they had this living, resurrected faith in them, they came out. प्रभु इतने साल रहा उनके साथ, 3.5 साल, कुछ नहीं हुआ। All 3.5 years, the Lord was with them, nothing happened. और जैसे ही जी उठने वाली सामर्थ के साथ आया, भाई जी डर बाहर निकल गया। जिनके मारे डरे थे उनसे कह रहे हैं, तुमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मारा। As soon as that faith came to the power, as soon as the faith came to power resurrection, they are standing in the temple and telling them directly, you are the man. डरे हुए अब डर को डरा रहे। They who were afraid are now making a fear afraid of them. जी उठने की सामर्थ आप देखिए, This power of resurrection. ये जो आप अगर यूहन्ना 19 में जाएंगे, यहाँ मरियम मगदलीनी मिलती है। जब प्रभु कहता है उससे कि मरियम आप बस मुझे मत छोड़ो, कहता नहीं कहता। In John 19, the Lord meets Mary Magdalene after rising. He says, don't touch me. हाँ, मरियम मरियम मत मुझे छोड़ो, Don't touch me. अब मैं उस कहानी में जाना नहीं चाह रहा, क्यों छू रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। I don't want to go to the story, otherwise will be diverted. इस कहानी को बिल्कुल चौकन्नी रह गई, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। But she was shocked. ये कहानी को आप लोग मूसा की झाड़ी वाली कहानी से मिलाओ। Compare the story with the burning bush of Moses. अरे ये क्या, Oh wow! ये कैसे हो सकता है? How did this happen? जब उसे परमेश्वर को पहली बार उसने झाड़ी में देखा, When he saw the Lord the first time in the burning bush, इसने मरे हुए यीशु को जी उठने की बात पहली बार देखा। she saw the Lord the first time after he rose again from the dead. रुक जा, मत आते अभी तेरे पैर। Don't come here. Put the shoes off your feet. हाँ, तो देखिए हमारा दिमाग काम नहीं करता, ये हुआ कैसे, वो कैसे। Our mind cannot understand how this happened. कैसे हो सकता है, मुर्दों में से कैसे जी सकता है, दिमाग। How can somebody rise from the dead? हाँ, फिर मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। प्रभु ने सबसे पहले दर्शन देने के लिए, जी उठने वाली देह दिखाने के लिए औरत को क्यों चुना? Why did the Lord choose a woman to show his resurrected body for the first time? इस्राएलियों में तो औरत की गवाही मानी नहीं जाती। In Israelites, a witness of a woman was not acceptable. नहीं मानी जाती, वो बहुत भावुक होती है। Why not? Because they are very emotional. उसकी बात का कोई से भावनाओं के बहाव में बहती है, फिर नीचे आ जाती है। They go in the wave of emotion, then come down, come up. हाँ, तो प्रभु ने इनको क्यों चुना, इस औरत को क्यों चुना सकता? Why did the Lord choose this woman? चुनता कहाँ से प्रभु? Why would the Lord choose? वो तो डर के मारे कहा। How could he choose? The disciples were hiding from out of fear अंदर दरवाजों के भीतर छिपा रखा था। behind closed doors. हाँ, और जब प्रभु की इन दासियों ने जाकर उससे कहा
But when these handmaids of the Lord went and told, हाँ, तो उनकी बात पर क्या विश्वास किया? पढ़िएगा लूक का 24 और 11 पढ़िए। did these brothers believe their words? Luke 24:15, 24:15. 11, 14, 11, Luke, 24, 11। Luke 24:11. हाँ, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति बस ना बस की। बस 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 भाई बस। Their words seemed like idle tales. हाँ, वो यूं कहते तुम कहानी सी बता रहे हो। You are telling a story. अच्छा, सबसे पहले किन्हें विश्वास करना चाहिए था? The translation says their words seemed like nonsense. So who should have been the first ones to believe? किन्हें करना चाहिए था? Who should have been the first ones to believe? बार बार मैं मुर्दों में जी दूंगा। तो विश्वास सबसे पहले किन्हें करना चाहिए? Again and again, he told the disciples, again from the first ones should have been the disciples. हाँ, कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। They rose again, he rise again from the dead. हाँ, इन चेलों से ज्यादा हिम्मत जो ये छाती ठोक कर कहते थे कि हम जान दे देंगे, ये औरतें काम करते हैं। The Lord knew that these men, the Lord knew these men who are trying to be so bold, these women will do a greater work than them. मरियम मगदलिनी जो थी, मगदलिनी जगह है, मगदली जगह है। There is a place called Magdalene. इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। And she had 7 evil spirits in her. 7 दुष्ट आत्माओं ने इसे 7 गुनी दुष्टता से भर दिया। And these 7 evil spirits filled her with seven times evil in her. मगर जैसे इसने प्रभु यीशु मसीह का जी उठने वाली सामने देखा, but the moment she saw the power of resurrection, resurrected Lord Jesus, आत्मा की 7 गुना सामर्थ्य से भर गई। when she saw the power of resurrection of the Lord Jesus, she was filled with 7 times power of Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह को जब हम उघाड़े हुए चेहरे से देखते हैं, उसके दर्शन देखते हैं, जी उठने की सामर्थ को देखते हैं, एक बड़ी सामर्थ उनमें काम करती। कैसे करती है बात? When we see when we see the unveiled face of the Lord Jesus, a new power works in us. उत्पत्ति से और जो बाइबल है 90 AD तक पूरी खत्म हो गई, मतलब पूरी हो गई। The Bible was completed from the beginning till what AD, brother? 90 AD. Till 90 AD, the Bible was complete. हाँ, 90 ईस्वी तक वो पूरी हो गई बाइबल। By 90 AD, the Bible was complete. उसका लिखना पूरा हो गया। Its writing was completed. उसके बाद उसका लिखा हुआ पूरा हो रहा है। And after that, what was written is being completed. अच्छा, किसी की बायोग्राफी लिखें तो कहाँ तक जाती है बायोग्राफी? If you write somebody's biography, how long will it go? इसका आगे तक नहीं जाती। Not beyond his death. क्योंकि ये कुछ है, कहीं आगे जा रही है। But this story is going even further. हाँ, मौत के आगे निकल गई, beyond death. हाँ, देखिए, अब मैं इस समय ये विषय नहीं है, कभी प्रभु माला तो जैतून के पहाड़ पर हम बात करेंगे। Sometime we talk about the Mount of Olives. 40 दिन प्रभु रहा। The Lord was there 40 days. दिन बाद पवित्र आत्मा अब मंडली पर उतरा। And then the Holy Spirit came down after 40 days on the assembly. जैतून के पहाड़ पर से जब उठा, उसके पैर कहाँ से उठे? बादलों में। When he was lifted up from the Mount of Olives into the clouds. पढ़िएगा प्रेरितों काम 1:12। Acts 1:12. Acts chapter 1 verse 12. जी भाई, प्रेरितों के काम 1:12। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। Turned to Jerusalem from the mount called Olivet. वो वहां पर बात की और प्रभु यीशु मसीह उनके देखने से उठ गया। और वो जगह कौन सी थी? They spoke to the Lord Jesus. He was lifted up from mount called Olivet. वो कहां से लौटे? From where did they return? Mount called Olivet. उसके पैर कहां से उठे? Where did his feet rise up from? पैर कहां से उठे? जैतून। Olivet. From the mount called Olivet. अब जहां से उठे थे ठीक उसी जगह दोबारा उसके पांव पड़े। And from where they were risen, his feet will once again come back there.
हाँ, पढ़िएगा जकरिया 14:4। Zechariah 14:4. Zechariah 14:4. हाँ, जकरिया 14:4। जी भाई। And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives. उस दिन वे जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, आगे भी लिखा है जो And जो वो पूर्व पहाड़ की फट ओर जाएगा। यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर बस बस फट बस जाएगा। बस बस भाई, हमारा मतलब वही। and the Mount of Olives is split in two. हाँ, वहीं से पैर उठे थे और वहीं पर पैर रखे। और His क्या feet होगा? rose again from Mount of Olives, will come back on the Mount of Olives. जैतून ये वो जगह है जहां मेरे पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिए थे। This is the place the Lord took my sins on himself. ये पश्चाताप की भूमि, एक दिन बताएंगे कि पश्चाताप की भूमि क्यों One है। day we'll see this is the ground of repentance. ये जगह खत्म हो जाएगी, This place will end. यानी पश्चाताप का मौका है। That means the time of repentance is over. एक बात का एक समय, तो पश्चाताप का भी एक समय, वो समय क्या हो जाएगा? There is a time for everything. Repentance also has a time. इसी जगह से पैर उठे और इसी जगह पर जैसे ही पैर पड़ेंगे ये पहाड़ हट जाएगा, फिर पश्चाताप का कोई नहीं रहेगा। क्योंकि इसकी यहाँ पर इस्राएलियों की प्रथा थी कि जब वो यरूशलेम आते थे यरो की तरफ से ना, तो यहाँ पश्चाताप करते थे और जो कुछ अशुद्धता थी वो गिदरौन के नाले में फेंकते थे और तब मंदिर में जाके आराधना चढ़ाते थे। His यहाँ feet पर lifted up from here, his feet will come back here because it was the tradition of the Jews. They would come to Jerusalem, repent at this place, throw their sins in Kidron, then move forward. फिर तरफ निकल जाऊंगा नहीं। यहाँ पर एक बार वाचा का जो मर्सी सीट वाला वो है संदूक, वो यहाँ आया था इस जगह। The Ark of the Covenant had once come here. हाँ, कभी मौका लगेगा तो फिर बाद में बात। We'll talk about it someday. तो प्रियो, पृथ्वी से पश्चाताप का समय खत्म हो जाएगा। Time of repentance on earth is over. हाँ, देखिए दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, Another thing, प्रभु की देह में सड़ने वाली कोई चीज नहीं। there is nothing that corrupts in the Lord's body. कड़ाहट तो मेरे शरीर में, दिमाग में बसती है। Corruption is in my body, in my mind. हाँ, तीसरे दिन ही अगर क्या बदबू जाने लगेगी, अगर लाश पड़ी होगी ना, A dead body on the third day will start stinking. तो उसको दबाने के लिए भाई जी इत्र डालोगे और ये डालोगे और फूल रखोगे ताकि बदबू ना फैलेगा। So you will put scent and flowers to kill the odor. ठीक कह रही थी, उसकी बहन कह रही थी 4 दिन हो गए, अब तो बदबू मारता होगा। So Lazarus' sister is saying it's been 4 days and now he stinks. मगर प्रभु की देह में पाप नहीं था, But there is no sin in the Lord's body. ये उसमें सड़ाहट छू नहीं सकती। So corruption couldn't touch him. हाँ, पढ़िएगा प्रेरितों काम 13:35। Acts of the Apostles 13:37. Acts 13:37. 35 13:35. 13:35। यस भाई। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। हाँ, प्रभु And he said in another place, you will not let your Holy One see corruption. देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम एक दिन, और हमारे यहाँ तो मौत एक प्रोसेसिंग में है, मौत हर दिन हमारे अंदर पल रही है। The process of death is going on in us. It's growing in us. एक अमेरिका के वकील को सारी दलील बताई, क्रिश्चियन की, रियल है, मुझे नाम नहीं याद रहा वकील का। A true story. A lawyer in America was told the Christian appeal. तो उन्होंने बताया कि ये एक सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। So these are the proofs the Lord Jesus rose again from the dead. वकील कहता है, The lawyer says, भाई जो ईसाइयों का जो तर्क है, दिमाग तो स्वीकार करता है बहुत से, what these believers are saying, our mind can accept it. मगर दिल विश्वास नहीं करता कि वो But the heart doesn't believe that he rose again from the dead. नहीं करता दिल, The heart doesn't. उसका दिल नहीं विश्वास करता, His heart doesn't believe. उसे ऐसा दिल दिया नहीं गया, His heart, such a heart has not been given to him. हमें ऐसा दिल दिया गया जो हम विश्वास कर सकते। We have been given this heart to believe. हाँ, देखिए, मान लो मैं मर गया, Suppose I die. आप मुझे दफनाया है, You will bury me. ठीक है,
तीसरे दिन Fine. मैं अपने घंटी बजाऊंगा। Third day, if I ring the bell of my house, क्या मेरी पत्नी मुझे स्वीकार करेगी? will my wife accept me? ये क्या What happened? सक्सेस? उसमें उसमें लिखा है चेले आनंद से और घबरा भी गए थे, डर गए थे, ये क्या It हो? is written the disciples were joyful, they were also very scared. जबकि प्रभु ने 10 बार बताया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। Even though the Lord had told so many times I'll rise again from the dead. क्यों? Dear ones, हम मुझसे कोई कहे, मान लो if somebody says to me, उनको जब वो जी उठा तू था वहां, when he rose again, were you there? मैं I नहीं wasn't था। there. I wasn't there. तो तूने उसे जीवता देखा उससे? Have you seen him living? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। I haven't seen him living. तूने उसकी जहाँ घाव थे उनमें उंगली डालकर, हाथ डालकर देखा? Have you put your finger in his side and seen? मैं कहूँगा नहीं, मैंने नहीं देखा। No, I haven't. ये फिर कैसे कह रहा है कि जी उठा? How do you believe that he rose again? तो बेवकूफ बच्चा भी सुबह मुझसे बात करके आया। Now, foolish man, I've just talked to him in the morning. ये विश्वास और आंखें मुझे प्रभु ने दी हैं। This faith, these eyes the Lord has given me. हाँ, जो अनदेखी चीजों को देख ली। That makes the unseen thing seen for me. हाँ, सच है, आदमी का दिमाग नहीं स्वीकार करता इन बातों Truly, man's brain doesn't accept it. को। देखिए, ज्ञान जो है संसारिक, वो हमारे दिमाग की आंखें खोलता है। The worldly knowledge opens our worldly eyes, eyes of our brain, हाँ, दिमाग की आंखें खोलता है। eyes of the brain. जानते हैं क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिग बैंग हुआ और इसके बाद ये हुआ, इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, हमारे दिमाग की आंखें खुलती हैं। What happened and this happened, how the world, the universe was created, the Big Bang happened, evolution. फिर ये जीवने वाला विश्वास जो है, ये मेरे दिल की आंखें खोलता है। But this living faith opens my eyes of my heart and mind, इससे मैं विश्वास से अनदेखी चीजों को देख लेता हूँ। by which I can see the unseen things. हाँ, देखिए, मसीह चेलों के पास आया, The Lord Jesus came to the disciples. डर तो गए, मगर फिर प्रभु ने उस जीवने वाले सामर्थ के द्वारा उन्हें विश्वास किया। They were scared, but by the power of resurrection, the Lord empowered them. तो वो डर से आनंद में आ गए, They came out of fear into joy. निराशा से आशा में आ गए। They came out of from disappointment and hopelessness to great hope. हाँ They got courage. हाँ, और फिर वही आदमी, डरपोक आदमी, मैंने आपको कहा मंदिर में जाकर कैसे कह रहे, The same fearful men now went to the temple. What are they saying? अनपढ़ आदमी इतने इतने याद कहाँ से आ गया? How did these ignorant men have this great courage? डर चला गया उसका। Fear was gone. फिर आपके अंदर जीतने वाली सामर्थ होगी, If you have the power of resurrection, फिर आपके अंदर से डर चला है। देखिए, fear will be gone. फिर आप सुसमाचार देते हुए नहीं डरेंगे। Then you will not be afraid to give the gospel. प्रभु के पास तो जीपीएस है भाई, The Lord has a GPS. वो देख रहा है, इसका दिल यहाँ नहीं है, कहीं और है। देखिए, The Lord is seeing his heart is not here, somewhere else. यहाँ बैठा मगर सोच कहीं और की रहा है। He is sitting but thinking about something else. जीपीएस है ना उसके पास, Is it not GPS? देखता है, पतरस दाहिनी ओर जाल डाल, उधर है मछली। The Lord is saying, said Peter, cast your net on the right side, that's where the fish is. जानता है, He knows, every one of us. डरपोक है, प्रचार देते हुए डरता है। He knows, he is afraid to give the और tract. जिसके नहीं, उसका प्रभु उपयोग ही करता But ही the नहीं। one who doesn't have a desire, the Lord doesn't use him. हाँ, उसका उपयोग ही नहीं करता। The Lord doesn't use him. हमने जीवने वाली सामर्थ काम नहीं करता। And the power of resurrection doesn't work in us, in that person. वो कह रहा पास मत आ, तेरे पैर सुंदर नहीं है। Don't come near me, your feet are not clean. पैर किससे सुंदर होते हैं? How do feet become beautiful? By preaching the gospel. देखिए, पतरस में जब जीवने वाली सामर्थ नहीं थी, When Peter saw the power of resurrection,
वो प्रभु के पीछे तो था, मगर धीरे 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 ज्यादा पीछे हो गया। He was after the Lord, but bit by bit he drifted away from the Lord. उसके जीवन में प्रचार नहीं था, No preaching in his life, प्रभु के लिए करने की इच्छा नहीं थी, no desire to do something for Christ. पीछे चलता चला। He kept on going back. अब जो लोग प्रभु के लिए उपयोग नहीं आते, एक दिन वो आ जाता है जब उन्हें खुद अपने उद्धार पर शक आने लगे। And the people who do not live for Christ, then one day comes they start doubting their salvation. हाँ, फिर सोचने लगते हैं, यार मेरा उद्धार हुआ या नहीं हुआ, Then they start thinking, am I saved or not? और उनका उपयोग नहीं हो पाता प्रभु के लिए। And they are not used by him. इस बोझ को शैतान इस्तेमाल करता है। Satan uses this burden. हाँ, देखिए, हम उनकी लाइन में लग जाएंगे जो लगातार निराश करने वाले लोग। We will get in line those people who constantly he discourages, जो निराशा में जीते हैं और निराशा को फैलाते हैं। who live in disappointment, discouragement, and spread discouragement. मंडी में ऐसा था और वो हाथ टेके बैठा था, उसने बाइबल नीचे रख दी थी और इसने ऐसा किया था और उसने वैसा किया था, सब All the time criticizing somebody or the other. ऐसे चलनी चाहिए। मैंने कहा चला, फिर मीटिंग चला दी। Oh, the meeting should run like this. And I said, okay, you run the meeting now. Then they start laughing. नहीं, उनके अंदर कुछ नहीं, वो सिखाना चाहते हैं। They just want to teach us. हाँ, मगर जीवने की सामर्थ नहीं। Not the power of resurrection. अच्छा, अब देखिए, ना तो उसकी सोच में रहती, ना उसके पास वो आनंद रहता, ना हिम्मत रहती, और ना ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रहता। Neither is there strength or courage in him. Neither does he believe in the promises of the Lord. हाँ, देखिए, पाप बहुत स्वार्थी है और सामर्थी भी है। Sin is very selfish and powerful. हाँ, और ये जीतने की सामर्थ्य के ही द्वारा रोका जा सकता नहीं। It can only be stopped by the power of resurrection. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तेरी जीतने वाली सामर्थ्य को जानूं। That is why Paul says, I may know the power of your resurrection. देखिए, अगर ये जीतने वाली सामर्थ्य नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ नहीं उठा, तो यीशु मसीह झूठा था। If the Lord Jesus had not risen from the dead, if the power of resurrection was not there, he would have been a liar. वो मेरे और आप जैसा पापी था। He would have been a sinner like you and me. अगर वो सामर्थ्य उसके अंदर काम करती थी झूठने वाली। But the power of resurrection was working in him. हाँ, देखिए, पॉल पीछे होता गया, Paul kept on drifting back, और किन के साथ बैठ गया जाके, and Peter kept on drifting back. And whom did he sit with? पतरस किन के साथ बैठ गया, सॉरी, Whom did he sit with? और हम संसार से अपने आप को गर्म करने लगे। We start warming ourselves with the world. कभी कोई संसारिक चीज आपको आती, तो संसार में लगा रहा, सब चीजें वही संसारिक देखना, वही सब कुछ करना। So seeing worldly things, spending time with worldly things. अब क्या, कहाँ पहुंच गया, देखिए। Now where did he reach? कहाँ पहुंच गया? Where did he reach? क्या कहता? What does he say? मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। I don't know this man. जीवते परमेश्वर के पुत्र को, जो प्रभुओं का प्रभु था, उसे क्या कह रहा है? वो आदमी को, This living God, Lord of Lords, King of Kings, he says, I don't know this man. प्रभु क्या कह रहा है? What is the Lord saying? He says, I don't know this man. आदमी रह गया, कोई दर्शन। For him, the Lord only became a man. बाइबल नहीं रही। Pardon, brother? उनके लिए बाइबल नहीं रही। For them, the Bible is no Bible at all. हाँ प्रियो, ये हालत हर एक की आ सकती है बाइबल। This can be each one situation. हाँ, देखिए, ये सोच जो है, अगर आपके पास जीवने वाली सामर्थ्य कुछ आ जानते हैं प्रभु की, if you know the power of resurrection and it's working in you, मेरा परमेश्वर जीवित है, my Lord is living, तो क्या होगा? what will happen? मुश्किल में
you are in trouble, तो आवाज आएगी, तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, a voice will come, your Lord is a living God. तेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, You are not getting answer of my prayers. तेरा परमेश्वर जीवित है। Your God is a living God. जिन पर विश्वास आएगा, रोमियो 8:28 आएगा। Have faith in you, Romans 8:28. हाँ, और ये जीतने वाली सामर्थ थी आपको मुश्किलों में, परेशानियों में, ये देखी कि प्रभु मेरे लिए आज भी जीवित है और And- मौत, हाँ, The power of resurrection tells me that the Lord is alive for me even today. मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मौत के बाद भी नहीं छोड़ेगा मुझे। My Lord is living, he will not leave me even after death. हाँ प्रियो, तो हम जितना प्रभु से कहते हैं, प्रभु अपनी जीतने वाली सामर्थ को दिखा दो, The more I say, Lord, show me the power of your resurrection, और आप एक नई सामर्थ को पाते, you get a new power in you. आपके अंदर से डर निकल जाता है, मेरा Fear परमेश्वर। is gone. हाँ, जब आप निराशा में, परेशानियों में, कमी घटी में है, उस समय नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। And you're in problems and difficulties, the power of resurrection, my living God is with me, he will deliver me. हाँ, आप कितनी परेशानी से क्यों ना निकले। How many problems you might be going through? पौल जिस समय फिलिपियों की पत्री लिख रहा है, उस समय वो कैद में था, बहुत तकलीफ में था। When Paul is writing the Philippian epistle, he was in prison, lot of problems, lot of pain. अपनी तकलीफ में कह रहा है, मैं तेरी मृत्यु में से जी उठने वाली सामर्थ को जानू। In his pain, in his suffering, he's saying, I will know the power of your resurrection. और वो निकल आया उससे। And he came out of it. जिनके जीवन में नहीं होता, वो धीरे 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 चले जाते हैं। In whose life this power is not working, bit by bit they drift away. कई दफा आपको नहीं लगता कि आपका उद्धार हुआ ही नहीं हुआ, And the question comes in your mind, am I really saved? लेकिन आपसे बात करता है नहीं करता, Does the word of God speak to you? प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा है या नहीं, या मर गई इच्छा। Is there no desire for you to live for Christ that is completely dead? हाँ प्रियो, ये वो विश्वास है जो हमें सामर्थ देता है, This is that power that gives us great power in us. जीतने वाली सामर्थ को काम कर। The power of resurrection. और प्रियो, जितने भी मरे हुए कामों से हमें जो जीवन देती है, यही सामर्थ देती है। And the one power that is there that gives us power is this resurrection power. ये उसके जी उठने की सामर्थ को दिखाती है। This shows the power of his resurrection. मेरा प्रभु जीवित है, वो फिर लौटेगा। My Lord is living, he will come back again. आपको कई दफा अपने आप से निराशा होती है, Many times you are discouraged with yourself आपको लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, and you think, I will not be able to do anything anymore. ये शैतान का विचार है। This is Satan's thinking. प्रभु में आज भी जी उठने वाली सामर्थ है। Today, power of resurrection is there with the Lord. आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते भी नहीं। You can do that which you cannot imagine. हाँ, मैं हर बार बड़ा डरा हुआ आता हूँ। Every time I come very scared. हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, I will not be able to do it. मगर मेरे प्रभु ने कभी नहीं धोखा दिया और कभी नहीं। But my Lord has never deceived, never failed me. देखिए इन औरतों ने क्या कर दिया, What did these women do? ये चेलों जो बिल्कुल अनपढ़ और कमजोर थे, इन्होंने क्या कर दिया। The disciples, very weak, ignorant, what did they do? छोटी मंडली क्या कर सकती है। What can the small assembly do? बस प्रभु हमारी मंडली में जी उठने वाली सामर्थ, Only let the power of resurrection, Lord, work in our assembly. वरना शैतान की सोच आपको दबोच लेगी। Otherwise, the thinking of the world or of Satan will pull you down. हाँ, नहीं तो आप निराशा में जियोगे और निराशा ही फैलाओगे। You will live in discouragement and spread discouragement. आपके शरीर में सड़ाहट है और वो बदबू ही फैलाता है। There is corruption in your body that only spreads the stink. और प्रभु की जी उठने वाली सामर्थ्य इस शरीर की सारी बुराइयों को मार देती It is the power of resurrection of Christ that takes away all the evil in my heart. है। तो मेरी भी आपकी भी प्रार्थना ये रहे, This ought to be your prayer and my prayer. तेरी जी उठने वाली सामर्थ को जान, Lord, I may know the power of your resurrection. जैसे आएगी सब कुछ नया होता चला जाए। And when it comes, everything will become new. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.